चलो, take question number 15. The following is the balance sheet of A, B and C on 31st December 2022 when they decided to dissolve the partnership. So liabilities side पे you have creditors, A's loan and capital accounts. Asset side पे you have sundry assets and cash. The assets realized the following sums in installments. First installment is 1000, second installment 3000, third installment 3900, fourth installment 6000 and fifth installment is 20100. This includes savings in expenses rupees 1000. The expenses on realization expected to be rupees 500 but ultimately amounted to rupees 400 only. Show how at each stage the cash received could be distributed between the partners. They share profits in the ratio of 2:2:1. Okay. Now in this question, I want to prepare statement of equivalent production. So can you tell me वो जो हमारा main statement है, sorry, statement of piecemeal distribution, statement of piecemeal distribution में main table में क्या क्या columns बनेगा? Particulars is common column. Okay, बाद में available cash वो भी common column है. Outsider liability में कौन सा बनेगा? सिर्फ creditors. उसके बाद A's loan is optional column but ये question में बनेगा because partner का loan है. बाद में adjusted partners capital A, B, C and last में total liability. चलो prepare the format. Prepare the format. चलो prepare this format. यहाँ पे there is one change. जो भी changes है वो मैं कर रहा हूँ. चलो prepare this format. Be ready. Of course, this is question 15 यहाँ पे. चलो, now what we want to do is first we will start doing the question. अभी नॉर्मल तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डू दिस. राइट डाउन बैलेंस ड्यू और ओपनिंग बैलेंस. बैलेंस ड्यू स्लैश ओपनिंग बैलेंस. ओके, हाउ मच इज कैश बैलेंस अवेलेबल? कैश बैलेंस अवेलेबल इज 500. Creditors 2000, A's loan 5000, adjusted partners capital 15,000, 18,000, 9,000. Total liabilities we have to total from creditors. बोलो कितना होता है? 49,000. Okay, now can you tell me इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? From cash, what will you first subtract? Not realization expenses. Don't say realization expenses. हम लोग क्या लिखेंगे? No, not even estimated realization expenses. Estimated realization expenses is 500 no doubt. लेकिन आप जो subtract करोगे ना उसकी जगह पे क्या लिखोगे? Amount set aside for estimated realization expenses. हम लोग को आज के डेट पे नहीं पता है कि realization expenses कितना होने वाला है. So what we are going to do is we are setting aside amount for realization expenses. So next line, less amount set aside for estimated realization expenses. How much is the estimated realization expenses that we have been given? 500. So 500 is the amount that is set aside for estimated realization expenses. Okay, so next line total karo. Of course this will become 0. Okay, so that is end of available cash. Next आएगा realization 1 या first realization.
फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट इज 1000. बोलो, दिस 1000 विल बी फर्स्ट पेड टू whom? Creditors. So can we pay off the creditors fully? No. तो क्या हम पूरा 1000 रुपीज पे कर सकते हैं? Yes. So next line लिखो, less paid to creditors. Okay, now subtract. So available cash is 0. Creditors amount is 1000. And total liabilities is 48,000. So this is end of first realization. So after money is over, we will go for second realization. $3,000. Just do one thing कि ये 5,000 को भी यहाँ पे नीचे लेके आओ. Put a totaling line here. Okay. Do we have sufficient cash to pay creditors fully? So लिखो next line, less paid to creditors fully. Paid to creditors fully 1000. Don't total. Okay, कोई बताएगा कि how much amount you are left with? 2000. Can we pay that 2000 to the next liability, that is partner's loan? Yes. So Nico, next time, less payment of A's loan, less payment of A's loan. चलो, now we will total. Total में what has become 0? Cash has become 0. Then creditors also has become 0. Creditors pay off हो गया है. What you do is put totaling line, but totaling line should be across all the columns. So now A's loan is 3,000. Adjusted partners capital को भी नीचे लेके आओ. 15,000, 18,000, 9,000, 45,000. Okay, we will go for third realization. थर्ड रियलाइजेशन का अमाउंट इज 3,900. चलो, अभी किसको पहले पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स लोन. ओके, मेक द पेमेंट. लेस पेमेंट ऑफ एज लोन फुल्ली. Less payment of A's loan fully, that is 3,000. Okay, next line, total. Of course, available cash has not become 0, but still we are totaling for our reference. There is one more point to be discussed, that is why हम उसका total कर रहे हैं. तो अवेलेबल कैश कितना बचेगा अभी? 900. लोन 0 हो गया. Bring down partners capital. Once again, adjusted capitals. At this stage, we have to pay adjusted partners capital. मैंने previously भी बोला है. Again I am saying, when adjusted partners capital को पे करना होता है,
basically there are two methods for paying adjusted partners capital. What is method number one, which we have already studied? Method number one is highest relative capital method. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या बोलता है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड पहले ये बोलता है कि आप लोग पहले एक्सेस कैपिटल को पे कर दो. वंस यू पे ऑफ द एक्सेस कैपिटल, उनके पार्टनर्स या पार्टनर्स के कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे. पार्टनर्स के कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल विल कम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड उसके बाद जो भी पैसा अवेलेबल है वो तुम पार्टनर्स को पे करो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये करने से क्या होगा कि लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन है विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज मेथड नंबर वन. मेथड नंबर वन विच इज कॉल्ड एज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज excess capital method, or it is also called as surplus method or surplus capital. एंड इसका और एक नाम मैंने लिया था, एनीबडी रिमेंबर्स? कोशंट मेथड. कोशंट मेथड भी इसका नाम है. ये मेथड नंबर वन. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड. दो पॉइंट मेरे को यहां पे बोलना है. पॉइंट नंबर वन दैट आई वांट टू स्पीक हियर इज, ये जो दो मेथड हैं, दीज टू मेथड्स आर फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल. मतलब जब तक आप पार्टनर्स लोन पे करते हो ना, तब तक मेथड के बारे में सोचना भी नहीं है. The two methods have no connection till you pay partners loan. ये पार्टनर्स लोन तक पेमेंट करने का कोई चेंजेस नहीं है. मेथड के बारे में कब सोचने का? When you start paying what? Adjusted partners capital. You start making payment towards adjusted partners capital, तब बैठ के मेथड के बारे में सोचने का. दिस वॉज माई पॉइंट नंबर वन. दूसरा पॉइंट मैं तुमको बोलना चाहता हूं, इज द मेथड गिवन इन द क्वेश्चन. कौन से मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्या वो क्वेश्चन में दिया है? नो. सो ये क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एज पर बोथ द मेथड्स. व्हाई ओनली दिस क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एज पर बोथ द मेथड्स. आप हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो. Of course in exam if आपको बोला है solve this question as per highest relative capital method, because ऐसे हम लोग ने sums किए हैं जहां पे method is specified, so you don't have any choice but you have to follow that method. अगर आपको बोला highest relative capital method तो आपको method follow करना है. आपको बोला maximum loss method, you have to follow this method. But if method is not given, we are free to follow any method. So in this question I am going to follow which method? मैक्सिमम लॉस. अब एग्जाम में क्या करने का? अगर मेथड नहीं दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे आफ्टर सॉल्विंग मैक्सिमम लॉस मेथड, क्योंकि ऑब्वियसली हम वो स्टूडेंट हैं कि ऐसा मेथड फॉलो करेंगे विच इज इजी. जो इजी है वो हम सॉल्व करेंगे. तो ये मेथड करने के बाद, विच मेथड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस, वो मेथड सॉल्व करने के बाद तुम बैठ के डिसाइड करो कि अगर एग्जाम में ऐसा ही सेम सपोज यही क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है तो मैं कौन से मेथड से करूंगा. तो फॉर दैट फर्स्ट यू लर्न मैक्सिमम लॉस मेथड. चलो, कमिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड, वी हैव रीच्ड अप टू दिस स्टेज. कैन यू टेल मी अभी मेरे पास पैसा कितना है? हाउ मच इज द मनी दैट इज अवेलेबल? 900. ओके. एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कितना है? 42,000. ओके. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? maximum loss method. Okay, don't write, see here, please don't write. कोई नहीं लिखेगा. ये मेथड का नाम क्या है?
ओके, मैक्सिमम लॉस मतलब क्या? इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है मालूम है? assumption. This is last realization. What is maximum loss का assumption? This is last realization. इसके बाद एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा। All assets are worthless. बस अभी मेरे पास 900 रुपया है। I am left with how much rupees? 900. बस इसके आगे 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा? 42,000 पे करना है, 900 आप पे कर दोगे तो लॉस कितना होगा? 41,900. हाउ डू यू गेट 41,900? व्हाट माइनस व्हाट? 42,000 minus 900. What will be the loss? 41,900. ये लॉस कौन बेयर करेगा? ओके, 41,900. 41,100. कोई बोलेगा ये 41,100 का लॉस कौन बेयर करेगा? तीनों पार्टनर्स। इन व्हाट रेशियो? पीएसआर। तो चेक करके मेरे को बताओ, हाउ मच इज द लॉस, सॉरी हाउ मच इज द पीएसआर? तो मतलब ये 41,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2। एक मिनट, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो। अरे सुनो ना पोपट लोग, रुको ना एक मिनट। ये 41,100 क्या है? रियलाइजेशन लॉस। कैन वी से दिस इज रियलाइजेशन लॉस? हमको पेमेंट कितना करना है? 42,000, लेकिन हमारे पास पैसा कितना है? 900। और ये मेथड क्या अज्यूम करता है? के लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। ऑल एसेट्स आर वर्थलेस, सबको फेंकना पड़ेगा, गटर में फेंकना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, ये सच में हो रहा है कि अजम्पशन है? अजम्पशन है। तो थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं। इधर वर्ड अज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अज्यूम, व्हाट इज द अजम्पशन? के लास्ट रियलाइजेशन है, मतलब मेरे पास सिर्फ 900 रुपया है, 900 रुपया पार्टनर। अब ये 900 रुपया मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही तो हम ढूंढ रहे हैं। यस और नो? ये 900 मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट। लेकिन सपोज मैंने 900 डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है 42,000, उतना तो पैसा है नहीं, तो 41,100 का लॉस है। अब ये 41,100 का रियलाइजेशन लॉस विल बी बेयर्ड बाय पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब करो कितना होता है? 2:2:1। डिस्ट्रीब्यूट 41,100 इन 2:2:1। बोलो कितना आता है? 16,440। 16,440 एंड 8,220, बराबर है? ओके, चलो नाउ यूज योर कैलकुलेटर, सबट्रैक्ट करो। ए का कैपिटल 15,000, बी का कैपिटल 18,000 एंड सी का कैपिटल इज 9,000। इसमें से ये लोग इतना लॉस बेयर करेंगे। तो बोलो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा? 1440 नेगेटिव हो जाएगा ना? बोलो नेक्स्ट। 1560 एंड 780 पॉजिटिव। डू यू एग्री विद दिस? चलो इधर तक समझ में आया? कैन यू टेल मी एंड रिपीट व्हाट वाज द अजम्पशन दैट वी हैव मेड? दिस इज द लास्ट रियलाइजेशन, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ये लास्ट रियलाइजेशन है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो सच में लास्ट रियलाइजेशन होता, तो 900 आप डिस्ट्रीब्यूट करते। अब 900 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वही मुझे नहीं मालूम है, कि 900 ए को दूं, बी को दूं, कि सी को दूं, या तीनों को दूं, तो कैसे दूं ये मुझे नहीं मालूम है। तो एक्सेस कैपिटल मेथड क्या बोलता था? एक्सेस कैपिटल मेथड ये बोलता था जिस भी पार्टनर का कैपिटल, जिसका भी पार्टनर कैपिटल एक्सेस है पहले उसको पैसा दो। दैट वाज व्हिच मेथड? बट एक्सेस कैपिटल। टुडे वी आर डूइंग व्हिच मेथड? मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस क्या बोलता है? ठीक है, ये हमारा लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद हमको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा 41,100। पॉइंट नंबर 1। तो अगर 41,100 का लॉस होगा, तो दिस 41,100 का लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1। तो एक का लॉस आएगा 16,440, बी का शेयर इन लॉस आएगा 16,440 एंड सी का 8,220। अच्छा, ये सच में हो रहा है कि अजम्पशन है? अजम्पशन है। ओके, अब किसका कैपिटल नेगेटिव हो गया है? ए का। तो हम ए को क्या बोलेंगे? तेरा कैपिटल नेगेटिव हो रहा है, तो तुझे मुझे पैसा देना पड़ेगा 1440। तो ए बोलेगा पागल हो गए हो, मुझे फर्म से 15,000 लेना है और तुमने मुझे लॉस दे दिया है।
मैं नहीं देता 1440, तो ए को बोलेंगे तू नहीं दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, तो assumption नंबर 2, ए हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ए हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ये सच में हो रहा है कि assumption है? assumption पे assumption। पहला assumption क्या था? ये लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, नो रियलाइजेशन। अच्छा सच में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम लॉस मेथड बोल रहे हैं मान के चलो, मतलब मानने में क्या है तुमको, मतलब ठीक है चलिए जो मान बोल रहा है मान लेते हैं कि ये लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं आएगा। सो 41,100 का लॉस बटा, वंस वी डिस्ट्रीब्यूट दिस 41,100, वन ऑफ द पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव हो गया, वन ऑफ द पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव हो गया, तो सेकंड असम्पशन, पार्टनर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अगर पार्टनर हैज बिकम इंसॉल्वेंट तो ए का कैपिटल में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1440, दिस 1440 का डेफिशिएंसी विल बी बैल्ड बाय इन कैपिटल रेशियो, गार्नर वर्सेस मुरे, इसी चैप्टर में किया हुआ है। कैपिटल डेफिशिएंसी विल बी बैल्ड बाय, कैपिटल डेफिशिएंसी विल बी बैल्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। क्या बोल रहा है तू? यू सेड पीएसआर, टेक्निकली दैट वाज रॉन्ग मेरे हिसाब से। यू आर नॉट अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मुरे, गार्नर वर्सेस मुरे तो मैं बोला, एटलीस्ट गिव मी सम क्रेडिट फॉर इट। तुझे याद रहता, इट वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड, वो बात अलग है। अच्छा तो वो नहीं रहता तो कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो इशू सेम, तो तेरे तो लग गए ना। बोलो एक में, ए का कैपिटल में डेफिशिएंसी कितना है? 1440। सो डोंट राइट, हाँ बोलो, ए का कैपिटल डेफिशिएंसी टू बी बेयर्ड बाय इन, ओके व्हाट इज देयर कैपिटल रेशियो? नहीं मैं जानबूझ करके 18:9 ही लिखूंगा, नहीं तो तुमको ऐसा लगेगा ये पीएसआर लिखा है। इट इज नॉट, इट इज कोइंसिडेंस कि इट इज इन पीएसआर, बट कैपिटल रेशियो टेक्निकली, बिकॉज वी आर अप्लाइंग विच रूल, गार्नर वर्सेस मुरे। चलो 1440 का लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू बीएनसी, चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, 1440 को डिस्ट्रीब्यूट करो 18:9, या कैलकुलेटर करने के तुम 2:1 कर सकते हैं, बोलो जल्दी कितना होगा? 960 का लॉस बी बेयर करेगा, बोलो इसमें 480। ओके सो 1440, तो ए पे 0 हो गया, बोलो 1560 माइनस 960 कितना होता है? 600, एंड यहाँ पे 300। कोई बताएगा 600 प्लस 300 कितना होता है? उतना ही पैसा है, मतलब ये स्टेज पे 600 बी को मिलेगा, 300 सी को मिलेगा। अरे हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो मैक्सिमम लॉस मेथड, यहाँ पे ना मैक्सिमम लॉस मेथड उल्टा है। आई डोंट नो वेदर यू आर लिसनिंग टू दिस और नॉट। मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है? सरप्लस कैपिटल मेथड का उल्टा है। वेरी रेयरली पीपल विल कंपेयर बोथ द मेथड्स। अगर आप दोनों मेथड कंपेयर करोगे ना, तो इसके लिए मेथड नंबर 1 मैंने रिवाइज करवाया, और मैंने ये क्वेश्चन आपको मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व करवाया। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है? पहले उनके कैपिटल्स को आप पीएसआर में लेके आओ। अगर आप कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आओगे ना, तो किसी ना किसी पार्टनर का एक्सेस कैपिटल निकलेगा, पहले वो एक्सेस कैपिटल को पे कर दो। बाद में एक बार उनके कैपिटल्स पीएसआर में आ गए तो सब पेमेंट्स पीएसआर में करो, ताकि लास्ट में आपको आंसर पीएसआर में आए। दिस वॉज अवर ऑब्जेक्टिव। व्हाट वॉज अवर ऑब्जेक्टिव? कि लास्ट में लॉस या प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? उल्टा। मुझे नहीं मालूम है 900 किसको दूं, लेकिन एक काम करते हैं, उल्टा जाता है, पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस, लेकिन ऐसा हम लोग ने एक क्वेश्चन में किया, वो आयरिस वाले क्वेश्चन में। आयरिस वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से पार्टनर को कितना पैसा देना है, तो पहले हम लोग ने क्या किया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
आयरिस वाला क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? पूरा दिन नींद में ही रहते हो। आई डोंट नो, अभी वो ये क्वेश्चन इधर सॉल्व किया था कि हाँ ये देखो ये वाला, कैन यू सी दिस? हम लोग ने पहले ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1900 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, और बाद में रिवर्स जाके हमने फाइंड आउट किया कि किसको कितना पेमेंट करना चाहिए। तो ये मेथड, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है? अजम्पशन नंबर 1, दिस इज द लास्ट रियलाइजेशन, इसके आगे हम लोग का कोई भी रियलाइजेशन नहीं होने वाला है। तो अगर ये लास्ट रियलाइजेशन है तो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा? 41,100। वो लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हो रहा है कि किसी ना किसी पार्टनर का या किसी पार्टनर का कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, मतलब पार्टनर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोल रहा है? बुरा से बुरा क्या हो सकता है? नाम में है मैक्सिमम लॉस। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? थिंक पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट समझता है? हाँ। बोलता है ए का कैपिटल डेफिशिएंसी बिकॉज ए हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा, क्या सच में ए इंसॉल्वेंट हो गया है? नहीं, बट समझ लो ए इंसॉल्वेंट हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ए इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस विल बी बेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। वी आर अप्लाइंग विच रूल? टर्नर वर्सेस। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि बी और सी को कितना देना है। अब मेन क्वेश्चन का आंसर, ये जो हमने लिखा है राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये एक्चुअली क्या है मालूम है? दिस इज नो, हाँ असम्पशन है, आई नो, बट ये एक्चुअली क्या है? वर्किंग। और ये वर्किंग है ना, वो इसी टेबल में लिखना है। मतलब ये वर्किंग को अलग से नीचे टेबल के बाद नहीं, वर्किंग टेबल के अंदर ही करना है। और ये वर्किंग से आपको क्या पता चला कि ये 900 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो बताओ 900 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एट प्रेजेंट यू विल डिस्ट्रीब्यूट 900 टू होम? कितना? बी को कितना? 300। सी को कितना? 300। एंड एट प्रेजेंट ए को कुछ नहीं मिलेगा। इधर तक समझो? तो कॉपी, एग्जैक्टली सेम वे कॉपी करो। ये लेस के सामने क्या लिखने का वो मैं बता रहा हूं। ये वर्किंग है, मुझे अलग अलग तरीके से मत पूछो। क्या ये वर्किंग है? आंसर हाँ। क्या ये वर्किंग टेबल के अंदर ही करना है? हाँ। ये वर्किंग टेबल के नीचे नहीं करना है ना। ये सब आंसर्स मैं आपको अभी से दे रहा हूँ, ये जैसा मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। चलो यहाँ पे लिखो लेस पेमेंट ऑफ बी एंड सीज कैपिटल। हाँ, पेमेंट ऑफ बी एंड सीज कैपिटल। ओके, payment of B and C's capital. Now this is the stage at which मैं जो रेड में लिख रहा हूँ that is working note। वर्किंग नोट भी मेन टेबल में ही करना है। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड द टेबल फॉर डूइंग द वर्किंग नोट अंडर दिस मेथड। सो अवेलेबल कैश हो गया 0। सो दिस इज 15,000। ये 600 should be in brackets because we are paying 18,000 minus 600 is 17,400, 8,700. Chalo, let us proceed. Now, can you tell me what is the next realization? Fourth realization. देखो, fourth realization. What is the amount of fourth realization? 6,000. So available cash में आएगा 6,000. Okay. Now, do you know कि ये 6,000 किसको पे करना है? नहीं. तो हम लोग क्या assume करेंगे? Again, what is the method that we are going for? Maximum loss. तो हम क्या assume करेंगे? This is the last realization. So again, working start होगा टेबल के अंदर ही. Write down maximum loss. Okay, what will be the amount of maximum loss?
41,100 minus 6,000, 35,100 in 2:2:1. 35,100 को we will distribute in the ratio of 2:2:1. चलो, let us distribute 35,100 in the ratio of 2:2:1. How much for A? मतलब A कितना लॉस बेयर करेगा? 1440. ओके, 14,040. B का भी वही आएगा 14,040. C का 7,020. नो, नथिंग विल बी रिटर्न इन लास्ट कॉलम. चलो, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करो. ऐसा कोई है जिसका पेज खत्म हो गया है? बोलो कितना है? 960. ओके, कितना था इसका? 3360 एंड 16. तो किसी का भी कैपिटल नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब नो नीड टू मेक सेकंड अजम्पशन. बरोबर है? अब ये तीनों का टोटल करो. 960 प्लस 3360 प्लस 1680. तो पता चल गया ना 6000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 6000 में से 960 ए को मिलेगा, 3360 बी को मिलेगा एंड 160. अच्छा, ये जगह पे पेज खत्म हो गया है कि और 2-3 लाइन बचा है? 2 लाइन है ना. हाँ, सो 2 लाइन कैसे यूज करना है? इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन लिखो. डोंट लीव एनी लाइंस लेस पेमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल. ये एक लाइन में खत्म करना पड़ेगा. लेस पेमेंट ऑफ all partners capital. So at this stage we came to know that we have to pay 960 to A, 3360 to B and 1680 to C. सॉरी, इसको क्लोज मत करो. नेक्स्ट लाइन में टोटल चाहिए. नेक्स्ट लाइन में टोटल करो. वी विल सब्ट्रैक्ट दिस. 15,000 में से ये वाला 960 माइनस करेंगे हम लोग. सो 15,000 माइनस 960 विल बी 14,040, 14,040 and 7,020. This is 35,100. चलो, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे तुम्हारा पेज खत्म हो गया. अगर आपका पेज खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स आपको फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा. लेकिन जब आप फॉर्मेट को एक्सटेंड कर रहे हो, नो नीड टू प्रिपेयर एवरी कॉलम. मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो कॉलम्स काम का है वही हम लोग बनाएंगे. सो स्पीकिंग वेरी स्पेसिफिकली, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स एंड एज लोन. तो सिर्फ बाकी के कॉलम्स बनाएंगे. लेकिन जब आप बाकी के कॉलम्स बना रहे हो तो आपको हेडिंग्स फिर से लिखने पड़ेंगे. यू हैव टू गिव हेडिंग्स वंस अगेन. सो टोटल लायबिलिटीज जो आपको बनाना पड़ेगा, फिर एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल जो बनाना पड़ेगा, not much, you have to prepare only for 10 lines. And available cash. Adjusted partners capital, yes. This is how you will have to prepare. आपको फिर से next page पे headings आपको देने पड़ेंगे. And one more thing you have to do is, आपको वो amounts यहाँ पे फिर से दिखाने पड़ेंगे. Whatever is the last
total that you have done. Okay, we will go for next realization, that is last one, fifth realization. Okay, now fifth realization में of course वो लोग ने आपको 20,100 दिया हुआ है. However, you have to be very careful because first realization में we had subtracted estimated realization expenses 500, but ultimately actual realization expenses amounted to only rupees 400. So जो 100 रुपीज का सेविंग्स हुआ है वो सेविंग्स ऑलरेडी वो फिफ्थ रियलाइजेशन में इंक्लूडेड है. अगर वो नहीं होता तो फिफ्थ रियलाइजेशन में हमको 100 रुपीज अलग से ऐड करके बताना पड़ता, बट इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. ओके, सो नाउ at present I don't know how to pay this 20,100, so I will use which method, or we are right now using which method? Maximum loss. So write down maximum loss equal to, chalo, now if this is assumed to be last realization, actually में ये last realization है, but still we will go for the same one, 20,100 minus करो, so you will be left with 15,000, which will be distributed in 2:2:1, 6,000, 6,000, 3,000. 14,400 minus 6,000 is 8040, 8040, 4020. You can total this 8040, 8040 and 4020. You should get 20,100. So this is how you will distribute 20,100. Extend, write down less payment of all partners capital. This was indeed the last realization. So you can see loss on dissolution is 6,000, 6,000, 3,000. In fact, आपने ये फर्स्ट मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. यू कैन सी द फाइनल आंसर इज सेम. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व मैक्सिमम लॉस मेथड. चलो, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू माय अनआंसर्ड क्वेश्चन. कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप कौन सा मेथड करोगे, मेथड 1 और मेथड 2? ऑफ कोर्स इट इज अप टू यू. आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो. दे विल गिव यू मार्क्स अज्यूमिंग योर आंसर इज करेक्ट. तो बोलो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहोगे. इट हैज टू बी दिस वन, मैक्सिमम लॉस मेथड, क्योंकि वो मेथड में तुमको सरप्लस कैपिटल का एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा डिटेलिंग करना पड़ता है. सो इफ नथिंग इज गिवन आई वुड गो फॉर मैक्सिमम लॉस मेथड पर्सनली. हाउएवर अगर आप फर्स्ट मेथड से भी करोगे तो वो गलत नहीं है. तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी एक सम उठाओ, दोनों मेथड से सॉल्व करो, देखो आपको कितना टाइम लगता है. सो ऑब्वियसली इन एग्जाम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू हैव टू सेव टाइम. तो जो मेथड में टाइम बचता है, आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम लॉस मेथड में टाइम बचेगा. सो मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करना चाहिए. हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे एग्जाम में मेथड नहीं दिया रहेगा. इफ दे आस्क यू क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि वो लोग पूछेंगे, बिकॉज अभी तक लास्ट 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, उसमें लोग ने पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो मेरे हिसाब से फाउंडेशन में अगर ये एरिया में से क्वेश्चन आता है, दे विल स्पेसिफाई मेथड टू बी फॉलोड. ऐसा एब्रप्टली वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. हाउएवर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर वो लोग नहीं बताते हैं मेथड तो देन यू आर फ्री टू फॉलो एनी मेथड. चलो, देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन जिसमें वी हैव टू फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम लॉस मेथड. सो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑन मैक्सिमम लॉस मेथड. इसके अंदर सब कुछ आ गया, मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा या सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एनी क्वेश्चन
आप एनी क्वेश्चन जो हम लोग ने इसके पहले सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 15 के, कोई भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम लॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, देन वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट. चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. EFG were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Due to extreme competition, it was decided to dissolve the partnership on 31st December. The balance sheet as on that date was as follows. So liabilities में capital accounts of EFG दिया हुआ है, current accounts of E and G दिया हुआ है, reserves, loan account of G and creditors. Then on the asset side, इनफैक्ट ये चैप्टर में असेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट बैंक. सो बैंक में बैलेंस है एंड करंट अकाउंट ऑफ एफ. द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज स्प्रेड ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज फॉलोज. फेब्रुअरी 51,900, मार्च फर्नीचर एक्सेट्रा 18,000, इनफैक्ट मशीनरी 139,500, अप्रैल में 18,000, मई G agreed to take over investments at 6,300. June में again there is a realization. Dissolution expenses originally provided were 13,500 but actually amounted to 9,600 and they were paid on 30th April. The partners decide that after creditors was settled for 50,400, all cash received should be distributed at the end of the month in most equitable manner. Prepare statement of actual cash distribution as received using maximum loss method. ठीक है, अब मैक्सिमम लॉस मेथड में तो एक ही फॉर्मेट बनता है, एक ही टेबल बनता है, जो हमारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वही बनता है. तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर द कॉलम्स दैट यू विल प्रिपेयर. फर्स्ट इज कॉमन कॉलम, कौन सा है वो, पर्टिकुलर. सेकंड अवेलेबल कैश, देन क्रेडिटर्स, ओके, देन लोन अकाउंट ऑफ जी, ओके, देन एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल EFG एंड लास्ट में टोटल लायबिलिटीज. चलो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट. एक्चुअली ये फॉर्मेट एक पेज में खत्म नहीं होगा. यू मे हैव टू गो टू सेकेंड पेज, बट प्रेजेंटली आप उसको एक पेज के लिए बनाओ. अच्छा, यू मे हैव टू यूज डबल पेज क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए. वी वांट अ बिगर पर्टिकुलर्स कॉलम. एक काम करो, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. आप है ना पर्टिकुलर्स कॉलम और अवेलेबल कैश है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओ. लेफ्ट हैंड साइड पे पर्टिकुलर्स एंड अवेलेबल कैश बनाओ, बाकी सब उधर बनाओ क्योंकि बाकी सब रुपीस के कॉलम्स है. हेडिंग दो ऊपर, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal distribution of cash under maximum loss method. Partners का नाम EFG. Okay, is the format ready? Let us prepare, or rather first do some changes in this balance sheet. उसके बाद हम लोग statement of piecemeal distribution of cash बनाएंगे. Okay, now first of all you tell me ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाला है. पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट दे विल पे टू द क्रेडिटर्स और सेटल देम फॉर ओनली रुपीज हाउ मच, 50,400. सो क्रेडिटर्स का अमाउंट कैंसल करके उसके सामने राइट डाउन 50,400. दैट इज फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. और एक चीज हम लोग को इसके अंदर जस्ट ऐसा फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा. पार्टनर्स हैव, और अदर यू कैन सी, वो लोग ने दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 13,500. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 13,500? एस्टिमेट किया 13,500. तो वो अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा. किस में से सेट असाइड करोगे, कैश बैलेंस. तो यहाँ पे कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस में से माइनस 13,500 बता के रखो. चलो आगे, नेक्स्ट. हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? 9,600.
600, मतलब पैसा बचने वाला है कि पैसा या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ज्यादा होने वाला है, बच गया है। और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो लोग ने एक्चुअली कब पे किया है? 30th अप्रैल को पे किया है। सो अगर 30th अप्रैल को पे किया तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द सेविंग्स, हाउ मच इज द मनी दैट इज सेव्ड, और हाउ मच इज द डिफरेंस? 3000। वो 3900 कब पता चला हमको? 30th अप्रैल। तो अप्रैल के रियलाइजेशन में 3900 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि उतना पैसा बच गया। ओके, नाउ विद दिस आई विल स्टार्ट द सोल्यूशन। नाउ इस सोल्यूशन में और एक पॉइंट दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। कैन यू टेल मी हाउ विल यू स्टार्ट दिस सोल्यूशन? मतलब आप सबसे पहले लिखोगे क्या? पहले आप इसके अंदर एडजस्टेड कैपिटल्स लिखोगे। पहले मेथड में कैपिटल्स एडजस्ट हम कहां पे करते थे? वेयर विड यू फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल? तो फर्स्ट मेथड में अलग से वर्किंग नोट बनता था, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट बनता था, उसके अंदर हम एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं बन रहा है, तो इसी के अंदर हम लोग एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल ढूंढेंगे। सो राइट डाउन पर्टिकुलर्स कॉलम में फर्स्ट लाइन कैपिटल्स एज गिवन। राइट नाउ यू फोकस ओनली ऑन पार्टनर्स का कॉलम। सो एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, ई एफ जी। तो ई के कॉलम में आएगा 113,100, एफ के कॉलम में आएगा 35,400 एंड जी के कॉलम में आएगा 31,500। नथिंग यू विल राइट इन टोटल लायबिलिटीज। ओके, टेल मी, आई वांट टू एडजस्ट द कैपिटल्स। एडजस्ट करना है कैपिटल्स को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या क्या चीज एडजस्ट करोगे इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर? नंबर 1 रिजोर्स, तो बात का बात है, पहले करंट अकाउंट। इफ यू रिमेंबर हम लोग ने पहले वाले भी सम्स किए थे जहां पे करंट अकाउंट्स दिए रहते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस इसको हम अल्टीमेटली किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो लायबिलिटीज साइड में जिन जिन का करंट अकाउंट दिया है वो आप इसके अंदर क्या करोगे? ऐड। सो नेक्स्ट टाइम राइट डाउन ऐड, ऐसा लिखो, ऐड स्लैश लेस। क्यों दोनों लिख रहे हैं हम लोग? एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है जो एसेट साइड पे दिया है, करंट अकाउंट्स। ओके, ई का कितना है? 26,400। ऐड करना है कि लेस? एफ का डेबिट बैलेंस है, नहीं एफ का 6,000 नहीं है, 18,000 डेबिट बैलेंस। जी 6,000 ऐड के लेस। बोलो, इज दैट ऑल कि और भी कुछ एडजस्ट करना है? रिजोर्स, रिजोर्स को क्या करेंगे? अरे डिस्ट्रीब्यूट मतलब ऐड लेस करेंगे, वो बोलो लेस। ऐसा डिसाइड कैसे करने का, ऐड करेगा कि लेस करने का? हाउ टू नो? लायबिलिटीज ना, जब का क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड होगा। ऐड रिजोर्स, करो अभी डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व्स का अमाउंट इज 1,08,000। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 1,08,000। बोलो व्हाट इज द ब्रेकअप? 1,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट कितना है? बोलो 54,000, 36,000, 18 of course. Okay, now put totaling line. खाली वो 3 कॉलम में, इसके नीचे लिखो बैलेंस ड्यू स्लैश ओपनिंग बैलेंस। अवेलेबल कैश में कितना लिखोगे? बोलो हाउ मच इज कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस? ऑफ कोर्स 29,700। क्रेडिटर्स में कितना लिखेंगे? क्रेडिटर्स 50,000
400, लोन अकाउंट ऑफ जी 15,000. ये सबका टोटल प्लस माइनस करके बोलो कितना था जल्दी. $193,500 कितना. ओके. Now total liabilities, we have to do that manually. We have to start totaling from creditors. ये सबका टोटल करो, बोलो जल्दी कितना था. प्लीज बी फास्ट. 3,67,000. बोलो सबसे पहले अभी अवेलेबल कैश में से क्या माइनस करोगे. अमाउंट सेट असाइड फॉर realization expenses. So write down next line less amount set aside for dissolution expenses. Amount set aside for dissolution expenses. Amount set aside for dissolution expenses 13,500. No need to total. चलो just do it on calculator. How much is the amount set aside? उसके बाद कितना बचता है वो किसको पे करेंगे. क्रेडिटर्स. चलो ऐसे करके गो अप टू जीज लोन. डू इट योर सेल्फ. जीज लोन तक पेमेंट खुद से करो. पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड. नेक्स्ट लाइन लेस पेड टू क्रेडिटर्स 16,200 लेस paid to creditors 16,200. next line total करो. available cash has become 0. of course creditor has not become 0. what is the balance in creditors. 34,200. total liabilities में 351,600. Okay, let's go for February realization. So write down February realization. Feb realization 51,900. ओके कितना पे करना है सिर्फ क्रेडिटर्स को इसमें से. सो राइट ऑन नेक्स्ट लाइन लेस paid to creditors fully 34,200. दोनों टोटल बोलो अभी पैसा कितना बचता है. कैन वी पे जीज लोन फुल्ली. सो नेक्स्ट लाइन राइट ऑन लेस पेमेंट ऑफ जीज लोन फुल्ली. ओके नाउ ये स्टेज पे टोटल करो. in fact put totaling lines across all columns. पार्टनर्स को पे करने से पहले टोटलिंग लाइन डालना चाहिए. ये लास्ट वाले का टोटल कितना है. 3,02,000. ओके चलो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन. अब हमारे पास जो 2,700 है ये 2,700 हम किसको पे करेंगे बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड और वी हैव टू स्टार्ट making payment towards the partners. Now in this we have to select the method. जब तक पार्टनर्स लोन को पे कर रहे हो तब तक मेथड सिलेक्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों मेथड में सेम ही होता है. लेकिन जब पार्टनर्स को पेमेंट करने का आता है तब हम लोग को मेथड सोचना पड़ता है. तो बताओ नाउ वी आर फॉलोइंग विच मेथड. मैक्सिमम लॉस. सो अभी हम लोग इसी टेबल के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे. working. So write down maximum loss equal to. Can you tell me how much is the cash available. 2,700. हम लोग क्या assume करेंगे. This is the last realization 2,700. So 3,02,400 ये तीनों का पार्टनर्स का टोटल है. कैपिटल
बट हम लोग उनको सिर्फ 2700 पे करेंगे, सो वी विल हैव अ लॉस ऑफ 2,99,700. This will be distributed in 3:2:1. बहुत ज्यादा लॉस है, तो कोई ना कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंसी का पॉसिबिलिटी है, तो डिस्ट्रीब्यूट करो. 2,99,700 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1. बोलो, हाउ मच इज ई का शेयर? 1,49,850. ओके, चलो बताओ एफ का कितना आएगा? 99,900. ओके, 49,950. So we will continue with the working. Working में ही we have to do the totaling. Subtract करो. There is definitely a possibility कि किसी ना किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो जाएगा. बताओ, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्लीज बी फास्ट, बोलो जल्दी बोलो. ई में कितना है? 43. ओके, नेक्स्ट. पॉजिटिव का नेगेटिव कितना? 46,500. चलो जल्दी. जी का 5,000. बोलो अभी. ई सॉरी एफ में नेगेटिव हो गया. व्हाट इज नेक्स्ट असम्पशन? तो एफ हैज बिकम इंसॉल्वेंट. एफ का डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? इन विच रेशियो? लिखो नेक्स्ट लाइन. F's capital deficiency to be bared by E and G. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन व्हाट रेशियो? अरे वो तो मेरे को पता है, अभी मैंने तुमको 15 मिनट पहले बताया. वी आर फॉलोइंग गार्नर वर्सेस मुरे. हाँ, तो बताओ कैपिटल रेशियो लेने का कितना? रेशियो बोलो, रेशियो क्या आएगा? रेशियो 1935 is to 555 is wrong because गार्नर वर्सेस मुरे में हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो नो नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल. जो भी फिक्स्ड कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऐसा हम लोग ने थिन शॉर्ट फैट करके क्वेश्चन किया था, उसमें पढ़ा था. करो तुम लोग अपना खुद का ही. गर्नर वर्सेस मुरे बोला है, वो भाड़ में गया. हम लोग हमारा रूल बनाएंगे. वो लोग कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? 1131 is to 315. (1,131 is to 315). लेट्स डिस्ट्रीब्यूट. पहले तो आप एफ के कॉलम में 46,500 को ऐड करोगे तो ही तो जीरो होगा. ये 46,500 को 1131 is to 315 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने का? पहले 1131 प्लस 315 करो, कितना होता है? 1446. चलो डिवाइड करो. 46,500 डिवाइडेड बाय 1446 इंटू डिड यू गेट 36,370? तो 36,370 ई बेयर करेगा. और डू द कैलकुलेशन. 46,500 डिवाइडेड बाय 144 कितना था? 6 इंटू
315 10,130 और ये करने के बाद टोटल करेंगे हम लोग. ये अभी तक हम लोग वर्किंग नोट में ही हैं. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग F's कैपिटल डेफिशिएंसी व्हाट इज हैपनिंग. माइनस करो जल्दी बताओ अमाउंट कितना है यहाँ पे. 7280. F तो जीरो हो गया लेकिन F का कैपिटल डेफिशिएंसी बेयर करने के बाद G हैज बिकम इंसॉल्वेंट. तो G का कैपिटल डेफिशिएंसी अब कौन बेयर करेगा. ए कहां से आया. EFG 3 पार्टनर है. तुम कभी चाहिए अपना पार्टनर का नाम अपने हिसाब से चेंज कर देना. चलो नाउ नेक्स्ट. G's कैपिटल डेफिशिएंसी टू बी बेयर्ड बाय E. तो यहां पे 456 और 4580 ऐड करो. यहां पे 4580 माइनस करो. जल्दी टोटल करो. बी फास्ट. बोलो ई का कितना आया. 2700. एग्जैक्टली उतना ही पैसा है हमारे पास अभी. वो 2700 मतलब एट दिस स्टेज किसको पे करना चाहिए. ई को. राइट ऑन नेक्स्ट लाइन लेस. ये वर्किंग करने से हमको ये समझ में आया कि फिलहाल जो 2700 है वो हम ई को पे करेंगे. सो लेस पेमेंट ऑफ ईज कैपिटल. $2,700 अवेलेबल कैश में से माइनस करो. ई के कॉलम में से 2,700 माइनस करो एंड टोटल लाइबिलिटीज में से 2,700 माइनस करो. चलो नेक्स्ट लाइन टोटल. मार्च का रियलाइजेशन खुद से करो. चलो ओके. टेल मी मार्च रियलाइजेशन. इनफैक्ट मार्च रियलाइजेशन में यहां पे कैश जीरो हो गया है. उसके बाद फटाफट अमाउंट्स बताओ. चलो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2,700 1 लाख. चेक करो ये सब फिगर्स. 1,90,800 इज दिस करेक्ट. 53,400 and 55,500. 2,99,700. ये सब बराबर था. मार्च रियलाइजेशन में पैसा कितना मिला. 1,39,500. चलो 1,39,500 करेंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना आएगा. 139,500 माइनस करो. 1,60,200. 1,60,200 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा बताओ फटाफट. 80,100. एक मिनट. 80,100 देन exact 53,400. ओके देन इसका हाफ. यस 26,700. ओके तो इसको माइनस करोगे तो बचा कितना. 1,10,700 जीरो एंड 28,800. तो इतना ही पैसा देना है ये दोनों पार्टनर को. सो 139,500 पेमेंट ऑफ ई एंड जी's कैपिटल. पेमेंट ऑफ ई एंड जी's कैपिटल 1,10,700 and 28,800.
This is how 1,39,500 will be paid to both the partners. Okay, after subtracting amounts बताओ. Available cash 0 हो गया है. 1,90,800 minus 1,10,700 तो कितना बचता है? 80,100, 53,400, 26,700, 1,60,200. चलो ये हो गया मार्च रियलाइजेशन. लेट अस गो फॉर अप्रैल रियलाइजेशन. राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. अप्रैल रियलाइजेशन. नाउ अप्रैल रियलाइजेशन में वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि वहां पे हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ने के टाइम कुछ लिखा हुआ है. सो अप्रैल रियलाइजेशन फर्स्ट राइट डाउन 18,000. नेक्स्ट लाइन add excess of estimated realization expenses. Add excess of estimated realization expenses over actual realization expenses. Add excess of estimated realization expenses over actual realization expenses. तो वो हो गया 3,900. Okay. So just if you want you can total. अगर पेज खत्म हो गया है तो नेक्स्ट पेज पे जाने का है. नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताया है, वही कॉलम्स रिपीट करने का जो जरूरी है. Which columns are necessary? Only those columns will have to be prepared. So available cash column repeat होगा, adjusted partners capital का column repeat होगा, and last में total liabilities. So I am going for next page. When I go to the next page, I will have to write 21,900 जो available cash है वो मैं फिर से लिख रहा हूँ. In fact मैं तीनों का liabilities amount लिख रहा हूँ. ये 80,100, 53,400, 26,700 and 1,60,200. Okay, now again I will go for maximum loss. Maximum loss में $1,60,200 minus 20,000, sorry, 21,900. Okay, how much is maximum loss? इसको माइनस करोगे तो कितना आता है? 1,38,000. This will be distributed in 3:2:1. चलो 138,300 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन 3:2:1. 138,300 सो आएगा जी में आएगा 2350, एफ में आएगा 46,100 and 69,150. Again now we will total. I don't think any partner का डेबिट बैलेंस हो रहा है. 80,100 सो माइनस करने के बाद आया 10,950, 7,300, 3650. तो ये तीनों का टोटल अगर आप करोगे ना तो 21,900 आएगा एग्जैक्ट.
तो दिस इज हाउ दिस 21,900 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नेक्स्ट लाइन आएगा लेस पेमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल. लेस पेमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल 21,900 कैश कॉलम में से माइनस होगा. यहाँ पे 80,100, 53,400, 26,700, 21,900. चलो माइनस करेंगे तो अवेलेबल कैश, सॉरी यहाँ पे 10,950, 7,300 एंड 3,650 इतना पेमेंट होगा. सो आफ्टर पेइंग दिस यू विल बी लेफ्ट विथ 69,150, 46,100, 23,050, 158 सॉरी 138, 300. चलो ये क्वेश्चन में नाउ एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके आगे इट इज वेरी मैकेनिकल कि में क्या करने का. में वो लोग ने बोला है जी हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट एट 6,300. व्हाट डज दिस मीन? जी हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट एट 6,300. इसके पहले हम लोग ने दो क्वेश्चन ऐसा किया है. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक आइरिस वाला क्वेश्चन किया था एंड और एक क्वेश्चन किया था जिसमें पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा था. यहां पे भी पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है. अब क्वेश्चन ये आ रहा है, ये जो पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है इज इट इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल और क्या वो पैसा देगा फर्म को? मतलब पार्ट पेमेंट टुवर्ड्स हिज कैपिटल, मतलब जी ऐसा बोल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो मेरे कैपिटल के सामने एडजस्ट करो, या ये जी हमको 6,300 पैसा दे रहा है. क्योंकि अगर आप लास्ट क्वेश्चंस को रेफर करोगे सो दोनों क्वेश्चन में, वो आइरिस वाले क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो आइरिस वाले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था, इट वाज रिटन देयर इफ यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दैट पार्ट ऑफ मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय आइरिस इन. उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया था, PQR वाला क्वेश्चन था ऑन पेज नंबर 312. you can see that it was clearly given as part payment of his capital are as accepted machinery. इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आर जो मशीनरी लेके जा रहा है इज इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल. हाउएवर इन दिस क्वेश्चन खाली ऐसा बोला है जी हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट बोलो. तो इन दिस क्वेश्चन और इन दिस सिचुएशन व्हाट डू आई अज्यूम कि जी जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है इज इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल और इज जी गिविंग मनी टू द फर्म? नो, इट इज नॉट पार्ट पेमेंट. इट इज जी अगर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो वो फर्म में पैसा दे रहा है. सी अगर जी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो ये स्टेज पे जी को 6,300 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो तो हमको थोड़ी मालूम है. वी आर फॉलोइंग विच मेथड? मैक्सिमम लॉस. तो मुझे नहीं मालूम है ये स्टेज पे जी को 6,300 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, वो दो क्वेश्चन, इसके लिए मैंने जानबूझ करके उधर क्वेश्चन में जाके तुमको बताया अभी कि इट इज क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है कि दे आर टेकिंग ओवर एसेट इन पार्ट डिस्चार्ज, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. सो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते. यहाँ पे अगर आपको अजम्पशन लेना ही है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जी हमको 6,300 कैश में दे रहा है. सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, मे रियलाइजेशन May realization 6,300. जी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करेगा तो जी देगा. आई नो, बट राइट नाउ वी डोंट नो वेदर जी को 6,300 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. तो फर्म जी को बोलेगा एक बार के लिए तुझे पैसा देना पड़ेगा 6,300. ये स्टेज पे तुझे 6,300 मिलना चाहिए वो तुझे कैसे पता चला?
अरे वो मेथड अलग था, वहां पे हमको पता रहता था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, वहां पे हमको पता था। इनफैक्ट वो क्वेश्चन में, आर वाले क्वेश्चन में तुम आर को 9000 का मशीनरी दे रहे हो, जो कल ही सुबह को हम लोग ने किया था। आर को वॉज गेटिंग मोर देन व्हाट ही शुड हैव गॉट एट दैट स्टेज, बट वो तो तुझे पता था ना कि ये स्टेज पे आर को ज्यादा मिल रहा है, ये स्टेज पे तो मुझे पता ही नहीं है कि जी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हम जी को क्या बोलेंगे, तुझे इन्वेस्टमेंट लेके जाने तो लेके जा, पर एक बार के लिए तुझे पैसा देना पड़ेगा फर्म में, क्योंकि ये स्टेट पे हमको नहीं मालूम है कि भाई तू किसको पैसा मिलना चाहिए। सो वी हैव टू फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड। चलो, मे रियलाइजेशन 6300, आगे का क्वेश्चन अभी खुद से सॉल्व करो, 2 बार आपको करना पड़ेगा। मे रियलाइजेशन एंड जून रियलाइजेशन, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन ऑन योर ओन, डू इट योरसेल्फ, इधर ही प्रैक्टिस करो ये वाला मेथड।